ادھر بستی میں قاسم اور روزی بستی سے چند قدم دور انجیر کے درختوں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روزی آج بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا حقیقی شہزادہ مل گیا تھا۔ ایک بہادر جنگجو اور خوبرو نوجوان اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قاسم روزی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی یہاں اپنی گمشدہ محبت کے قاتل ابو جعفر سے مارسی کی بابت پوچھنے آیا تھا، لیکن اسے اس محبت سے زیادہ اپنا مقصد عزیز تھا، اور اس کا مقصد تھا قسطنطنیہ کے دفاعی انتظامات کی جاسوسی کرنا۔ اس نے تو روزی کو دوست کہہ کر مچھیروں کی بستی میں کچھ دن بسر کرنے چاہے تھے۔ اس نے روزی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ روزی اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ یہاں روزی کے قریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ روزی کی چھوٹی بہن جو 11-12 سال کی بچی تھی، پوری قوت سے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کیے بغیر کہنے لگی، مقدس باپ، وہی کل والا یونانی سالار اپنے ساتھ بہت زیادہ گھڑ سوار لیے ننگی تلوار لہراتا ہوا ہماری بستی کی جانب آ رہا ہے۔ ہم اس چٹان پر کھیل رہے تھے اور میں نے اوپر سے انہیں دیکھا ہے۔ قاسم ایک دم کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا سایہ کرتے ہوئے مغرب کی جانب دیکھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ روزی کی بہن سچ کہہ رہی تھی، مقرون کے گھڑ سوار تو اب بستی میں پہنچنے والے تھے۔ یہ تو شکر ہوا کہ قاسم روزی کے ساتھ بستی سے باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے دور سے بستی میں داخل ہوتے ہوئے برہنہ شمشیر یونانیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے قاسم کو فوراً بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ قاسم کے لیے بھی یہی کچھ کرنا مناسب تھا، لیکن وہ پیدل کیسے بھاگ سکتا تھا؟ چنانچہ روزی نے قاسم کو بستی سے کچھ اور دور ایک چٹانی سلسلے میں چھپنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑا لانے کے لیے بستی کی طرف چل دی۔ مقرون پاگل کتے کی طرح بستی میں داخل ہوا اور اندھا دھند بستی کے اکلوتے چرچ، جو ایک کوٹھڑی پر مشتمل تھا، میں گھس گیا۔ چرچ کے ساتھ ہی قاسم کی کوٹھڑی تھی۔ راہب اسے چرچ میں نہ ملا تو وہ ساتھ کی کوٹھڑی میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا، لیکن قاسم تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر لپکا۔ اتنے میں بستی کا سردار اور سب چھوٹے بڑے چرچ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ 50 سواروں کا مسلح دستہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ مقرون غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور بستی کے سردار کو آواز دی۔ روزی کا باپ، جو کسی قدر غصے میں تھا، مقرون کے سامنے آ گیا۔ مقرون نے اسے دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور اس کے سینے پر رکھ دی۔ کہاں ہے تمہارا مقدس باپ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا سر چاہیے۔ روزی کا باپ، جو پہلے ہی غصے میں تھا، مقرون کے لہجے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر رکھی تلوار کی کوئی پرواہ نہ کی اور غصے سے کہا، سپہ سالار، تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ میں کل ہی قیصر کے دربار میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم نے پہلے بھی ہمارے مہمان کی توہین کی ہے۔ ہم سب بستی والے متفق ہو کر تمہیں کہتے ہیں کہ معمولی سی مذہبی تفرقہ بازی کی بنا پر تم ہمارے معزز راہب کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن روزی کے باپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ راہب کا معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکروہ صورت مقرون نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور اگلے لمحے بوڑھے سردار کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ سردار کا سر کاٹنے کے بعد مقرون نے بآواز بلند کہا، بستی والو، تم میں سے کوئی بھی اس سردار یا اس راہب کا ساتھی ہے تو سامنے آ جائے، میں آج تمہارے راہب کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن بستی میں سے کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بوڑھے سردار کے قتل نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مقرون نے ایک بار پھر بآواز بلند اپنی بات دہرائی۔ اس کی بلند آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بستی کے دوسرے کنارے روزی کے کانوں تک جا پہنچی۔ روزی تو راہب کے لیے گھوڑا حاصل کرنے آئی تھی، لیکن اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے ایک دم سب کچھ بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کی طرف دوڑی اور چرچ کے سامنے گری اپنے باپ کی لاش کے قریب جانا چاہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس کا باپ اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور اسی بات نے اس کو اور اس کی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ راہب کی گرفتاری کا معاملہ مقرون کی نظر میں کس قدر سنگین ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کی لاش پر آ گری اور زور زور سے چلانے لگی۔ مقرون نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی خون آلود تلوار لیے اس کے قریب آیا اور انتہائی درست لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، کہاں ہے وہ تمہارا مقدس باپ جس کے ساتھ تم رنگ ریلیاں مناتی ہو؟ جلدی بتاؤ، ورنہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن روزی کا جواب مقرون کے لیے
गैर मुतवक्के था। रोजी ने कहा, हाँ हाँ, तुम मुझे भी मार दो, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मेरा बाप मर चुका है, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। वो बुरी तरह रो रही थी और पूरी तरह से अपने हवास में भी न थी कि मकरून की किसी बात का होशमंदी से जवाब देती। चुनाचे मकरून ने उसकी हालत को देखते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रोजी को उठा लें और मरकजी चौकी में ले चलें, और बस्ती वालों से मुखातिब होकर कहा कि वो उनके सरदार की बेटी को गिरफ्तार करके ले जा रहा है। मकरून के सिपाही तेजी से आगे बढ़े और नाजुक अंदाम रोजी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। बाकी सिपाहियों को मकरून ने हुक्म दिया कि वो बस्ती के चारों तरफ दूर दूर तक जंगल और चट्टानों में नौजवान राहिब को तलाश करें। मकरून के सिपाही रोजी को उठाकर चले गए और बाकू बस्ती में खड़ा रोजी को जाते हुए देखता रह गया। कासिम अभी तक नजदीकी चट्टानों ही में रोपूश था। वो सूरज गुरूब होने से पहले घोड़ा हासिल करना चाहता था। वो रोजी के लौटने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले तक जब रोजी न लौटी तो वो बेचैन हो गया। उसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। जरूर कोई बड़ी बात हो गई थी। अभी वो यही सोच रहा था कि उसे थोड़े फासले पर किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वो समझा कि रोजी घोड़ा लेकर आ पहुंची है और वो चट्टान की ओट से बाहर निकल आया। लेकिन उसके सामने एक यूनानी सिपाही बरहना शमशीर लिए घोड़े पर सवार खड़ा था। कासिम ने अपने राहिबाना लिबास के अंदर छुपी तलवार निकालने में देर न की। यूनानी भी कासिम को एक राहिब के तौर पर पहचान चुका था। कासिम पैदल था और यूनानी घोड़े पर सवार, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर गुरूब होते हुए सूरज ने आखिरी मंजर ये देखा कि कासिम यूनानी सिपाही को कत्ल करके और उसके घोड़े पर सवार होकर रुमेली हिसार की जानिब बढ़ चुका था। मुस्लिदीन आगा ने अलहदा खहमे में कासिम की तमाम रुदात सुनी और कासिम की दरख्वास्त पर बस्ती के हालात मालूम करने के लिए 2 तजर्बाकार साथियों को भेजने पर आमादा हुआ। वो सिपाहियों को वापस भेजकर लौटा तो उसके हाथ में खाने की तश्तरी भी थी। उसने खैमे में दाखिल होते ही कासिम से कहा, कासिम बिन हिशाम, आपकी पहली इत्तला मैंने कल ही सुल्तान की जानिब रवाना कर दी थी। लीजिए, आपका खाना भी आ गया। मुस्लिदीन आगा ने दस्तरख्वान बिछाकर खाना चुनना शुरू कर दिया। आबनाए बॉस्फोरस की मछली तो कासिम गुज़श्ता कई दिनों से खा रहा था, लेकिन इस तरह जैतून के तेल में तले हुए कतले देखे तो उसे अपने वतन की याद आ गई। वो अगरचे रोज़ी की तरफ से परेशान था, लेकिन उसने खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। खाने के दौरान उसने मुस्लिदीन आगा से पूछा, आपका किला कहाँ तक पहुँचा? सुल्तान को इस किले की तामीर का बेचैनी से इंतज़ार है। मुस्लिदीन आगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने 24 अप्रैल को इस किले का आगाज़ किया था और आज 18 मई के रोज़ हम इसका 1/4 काम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो हम अगस्त तक इसे मुकम्मल कर लेंगे। किले का रकबा 3000 मुरब्बा मीटर रखा गया है और इसमें 17 अदद बड़े बड़े बुर्ज बनाए जाएंगे, जिन पर तुम्हारे दोस्त उर्बान की बनाई हुई तोपें नस्ब की जाएंगी। मैंने इस किले का नक्शा इस तरह से बनाया है कि अगर फिजा से किले को देखा जाए तो मोहम्मद का लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें 3 बुर्ज बहुत ज्यादा बुलंद बनाए जाएंगे, जिनकी ऊंचाई 90 फुट तक होगी। मैं इसकी दीवार के निचले हिस्से को 9 मीटर चौड़ा बनाकर इसको बेहद मजबूत करना चाहता हूँ। मुस्लिदीन आगा ने अलहदा खहमे में कासिम की तमाम रुदात सुनी और कासिम की दरख्वास्त पर बस्ती के हालात मालूम करने के लिए 2 तजर्बाकार साथियों को भेजने पर आमादा हुआ। वो सिपाहियों को वापस भेजकर लौटा तो उसके हाथ में खाने की तश्तरी भी थी। उसने खैमे में दाखिल होते ही कासिम से कहा, कासिम बिन हिशाम, आपकी पहली इत्तला मैंने कल ही सुल्तान की जानिब रवाना कर दी थी। लीजिए, आपका खाना भी आ गया। मुस्लिदीन आगा ने दस्तरख्वान बिछाकर खाना चुनना शुरू कर दिया। आबनाए बॉस्फोरस की मछली तो कासिम गुज़श्ता कई दिनों से खा रहा था, लेकिन इस तरह जैतून के तेल में तले हुए कतले देखे तो उसे अपने वतन की याद आ गई। वो अगरचे रोज़ी की तरफ से परेशान था, लेकिन उसने खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। खाने के दौरान उसने मुस्लिदीन आगा से पूछा, आपका किला कहाँ तक पहुँचा? सुल्तान को इस किले की तामीर का बेचैनी से इंतज़ार है। मुस्लिदीन आगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने 24 अप्रैल को इस किले का आगाज़ किया था और आज 18 मई के रोज़ हम इसका 1/4 काम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो हम अगस्त तक इसे मुकम्मल कर लेंगे। किले का रकबा 3000 मुरब्बा मीटर रखा गया है और इसमें 17 अदद बड़े बड़े बुर्ज बनाए जाएंगे, जिन पर तुम्हारे दोस्त उर्बान की बनाई हुई तोपें नस्ब की जाएंगी।
میں نے इस कले का नक्शा इस तरह से बनाया है कि अगर फिजा से कले को देखा जाए तो मोहम्मद का लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें 3 बुर्ज बहुत ज्यादा बुलंद बनाए जाएंगे जिनकी ऊंचाई 90 फुट तक होगी। मैं इसकी दीवार के निचले हिस्से को 9 मीटर चौड़ा बनाकर इसको बेहद मजबूत करना चाहता हूँ। अगली सुबह मुसल्लादीन आगा और कासिम ने 50 बेहतरीन लड़ाका सिपाहियों का एक दस्ता मुंतखब किया और मकरून की मरकजी चौकी जो बास्फोरस के किनारे वाक़ थी तेज रफ्तार से मरकजी चौकी की जानिब उड़े चले जा रहे थे। अभी सूरज की पहली किरण ही नजर आई थी कि मुसल्लादीन आगा का बर्क रफ्तार दस्ता मकरून की मरकजी चौकी पर पहुंच चुका था। ये चौकी एक छोटी सी इमारत थी जिसके चारों तरफ कदे आदम फसील थी और दरमियान में 4-5 कमरे गारे और मिट्टी से बने हुए थे। इमारत के एक कोने में किसी कदरे ऊंचा एक बुर्ज था जिसमें मौजूद मकरून के दोनों तीरंदाज रात भर शराब पीने के बायस बेसुध सो रहे थे। मुसल्लादीन आगा के सिपाहियों ने आन की आन में चौकी पर धावा बोल दिया और कमरों में घुसकर ख्वाब खरगोश के मजे लेते हुए यूनानी सिपाहियों को तहते कर दिया। बुर्ज पर मौजूद तीरंदाज भी मारे गए और चौकी में मौजूद एक यूनानी सिपाही भी जिंदा ना रहा। लेकिन मकरून और रोजी उनके हाथ ना आए। वो उनके हाथ कैसे आते? वो तो गुज़श्ता रात से यहाँ नहीं थे। मकरून जंजीरों में जकड़ी रोजी को लेकर बुर्ज गलाता की जानिब निकल गया था जहां वो रोजी के शबाब से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो सकता था। बुर्ज गलाता यहाँ से काफी फासले पर था। ये एक निहायत कदीम कई मंजिला मीनार था जिसकी चौड़ाई इस कदर थी कि इसे एक बाकायदा इमारत समझा जा सकता था। इस बुर्ज में ऊपर नीचे कई कमरे थे और ये बुर्ज भी यूनानी सिपाहियों के कब्जे में था। मकरून का सदर दफ्तर भी यहीं था और मकरून ही यहाँ का निगरान भी था। ये बुर्ज बिलहकीकत कुस्तुनतुनिया शहर के बिल्कुल नजदीक गोल्डन हॉर्न के किनारे पर वाक़या था। बुर्ज गलाता को 507 ईस्वी में बाज़ंतीनी शहनशाहों ने जहाज़ों की रहनुमाई के लिए रोशनी घर यानी लाइट हाउस के तौर पर तामीर किया था। ये बहुत बुलंद टावर था और इसमें खासी वसीओ अरीज और बुलंदो बाला 10 मंजिलें थीं। ये रात मकरून ने रोजी के हमरा बुर्ज गलाता में ही गुजारी थी। वो रात भर शराब पीकर रोजी की इज्जत पर हमला आवर होता रहा, लेकिन रोजी ने इसे किसी खूनखार बिल्ली की तरह नजदीक ना आने दिया। वो पूरी तरह होश में होता तो रोजी की आबरू यकीनन लुट चुकी होती, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पी लेने के बायस वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। बिलाखिर सुबह के करीब इसकी आंख लग गई और उस वक्त कहीं जाकर रोजी की जान में जान आई। मकरून की आंख दिन चढ़े एक बुरी खबर के साथ खुली। किसी ने इसकी मरकजी चौकी पर शब खून मारकर तमाम सिपाहियों को तय कर दिया था। ये मकरून के लिए बेहद बुरी खबर थी, क्योंकि वो कैसर कुस्तुनतुनिया के सामने मरकजी चौकी से अपने गायब रहने का कोई जवाब पेश न कर सकता था। वो बुरी तरह घबरा गया और इसे पहली मर्तबा ऐसे लगा कि जिस मफूर को रूमी राहिब समझ रहा था वो सिरे से ईसाई ही न था, क्योंकि मरकजी चौकी पर हमला किसी अकेले शख्स की बात न थी और मकरून जानता था कि यहाँ ज्यादा तादाद में मौजूद दुश्मन सिर्फ मुसलमान ही हैं। ज्यों ही उसके जहन में ये बात आई कि हमला मुसलमानों ने किया है, वो और ज्यादा परेशान हो गया। अब इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि शहनशाह के पास खबर पहुंचने से पहले पहले वो रुमीली हिसार में मौजूद मुसलमानों से बदला ले ले। रुमीली हिसार यहाँ से 5 मील के फासले पर तामीर हो रहा था और मकरून के पास यहाँ 400 मुसल्ला सवार दस्तयाब थे। मकरून ने बुर्ज गलाता की 7वीं मंजिल से उतरकर फिलफौर एक कश्ती पकड़ी और गोल्डन हॉर्न की खलीज को उबूर करता हुआ वापस उसी साहिल पर आन उतरा जहां से वो बुर्ज गलाता के लिए गुज़िश्ता शब कश्ती में सवार हुआ था। इस साहिल पर उसके सिपाही खैमजन थे। मकरून ने इंतहाई एहतियात के साथ अपने सिपाहियों को हमरा लिया। उसे डर था कि कहीं फसील से बाहर के हालात फसील के अंदर शहनशाह के कानों तक ना पहुंच जाएं। शहर से थोड़ी दूर पहुंचकर मकरून ने घोड़े को एड़ लगा दी। अब 400 सवारों का ये मुख्तसर लश्कर धूल के बादल उड़ाता हुआ रुमेली हिसार की जानिब बढ़ रहा था। मुस्लिहुद्दीन आगा के तेज रफ्तार जासूसों ने उसे वक्त से पहले खबरदार कर दिया। चुनांचे मकरून का यूनानी लश्कर रुमेली हिसार के नजदीक पहुंचा तो उसे रुकना पड़ा। सामने रुमेली हिसार के सिपाही सफ़ें बांधे पहले से तैयार खड़े थे। मुस्लिहुद्दीन आगा ने मकरून का इस्तकबाल एक लश्कर की तरह किया और बाकायदा तबले जंग बजाकर मकरून पर हमला कर दिया। मुसलमान तादाद में कम थे, उनके सवारों की तादाद 80 के करीब थी और पैदल लड़ने वाले 100 से भी कम थे। लेकिन जिस मुनज़्ज़म तरीके से मुस्लिहुद्दीन आगा ने जंग का आगाज किया था उसकी तवक्को मकरून के सिपाहियों को न थी। सुबह 9 के करीब इस लड़ाई का आगाज हुआ और सिर्फ आधे घंटे में ही ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई और मकरून अपने पीछे बहुत सी लाशें छोड़कर बुर्ज गलाता की जानिब फरार हो गया।
आज का दिन मकरून के लिए एक अजाब की शक्ल में नाजिल हुआ था, क्योंकि वो जूं ही बुर्ज गलाता पहुंचा, शहंशाह के पैगाम बरदार उसके मुंतजिर थे। अब मकरून का खून खुश्क होने लगा। उसे कैसर की तरफ से अपने लिए सजाए मौत या सजाए कैद का हुक्म साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन शहंशाह की तरफ रवाना होने से पहले उसने एक अजीब काम किया, और वो ये कि बुर्ज गलाता की 7वीं मंजिल में कैद रोजी को बगैर कुछ कहे आज़ाद कर दिया। शायद यही वो नेकी थी जो आखिरी वक्त में उसके काम आई, और शहंशाह ने तमाम हालात सुनने के बावजूद उसे सिर्फ इतनी सज़ा दी कि उसे मुज़ाफ़ाती चौकियों की निगरानी के ओहदे से हटाकर एक आम सिपाही बना दिया। शहंशाह ने मुज़ाफ़ाती चौकियों का निगरान डेलेरस को मुकर्रर किया और एक हंगामी हुक्म के तहत शहर कुस्तुनतुनिया के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। ये गोया अवाम के सामने हंगामी हालत का ऐलान था। अब अहले कुस्तुनतुनिया पूरी तरह समझ गए कि शहर पर कोई संगीन हमला होने वाला है। कैसर कुस्तंतीन को इस इक़दाम का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कुस्तुनतुनिया के शहरियों ने, जिनकी तादाद उस वक्त 1 लाख से भी ज़्यादा थी, शहंशाह को दिफाई अखराजात के लिए चंदा देना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों ने सुल्तान के मजहबी इक़दामात के खिलाफ बोलना भी तर्क कर दिया और ईसाइयत के दोनों फ़िरकों के इत्तेहाद की बात करने लगे। शहंशाह ने लोगों का रवैया देखा तो फौरन सेंट सोफिया के चर्च में, जो मशरकी कलीसा और बतरीक़ आज़म का मरकज़ था, दोनों ईसाई फ़िरकों की एक मुत्तहदा मजलिस मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया, और इसकी सदारत के लिए रूमी कलीसा के पोप जॉन निकलसन पंजम के खुसूसी नुमाइंदा कार्डिनल एसिडोर को दावत दी गई, जो उस वक्त कुस्तुनतुनिया में मौजूद था। फसील से बाहर यूनानी काश्तकारों और सिपाहियों के साथ होने छेड़छाड़ के बाद शहंशाह ने एक काम ये भी किया कि तजर्बाकार सफ़ीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द सुल्तान मोहम्मद खान की खिदमत में भी भेजा, जिसमें मुसलमान सिपाहियों के तर्ज अमल की शिकायत की गई थी। सुल्तान मोहम्मद खान ने इस शिकायत का जवाब ऐलाने जंग से दिया और शहंशाह के सफ़ीरों को रवाना करते वक्त ये कहा कि कैसर कुस्तंतीन से कहना कि सुल्तान मोहम्मद खान फातिह बनकर कुस्तुनतुनिया में आ रहा है और इसे चाहिए कि वो उस्मानी अफवाज का इस्तकबाल खुले दरवाज़ों के साथ करे, वरना तुर्कों के घोड़े शहंशाह के शहर को इबरत का निशान बना देंगे। सुल्तान के अल्फाज शहंशाह के कानों पर तोप का गोला बनकर गिरे और वो बुरी तरह दहल गया। उसने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर मुख्तलिफ ईसाई ममलकतों की तरफ रवाना किए और पूरी ईसाई दुनिया से इस मुश्किल वक्त में मदद की दरख्वास्त की। आसिम अभी तक रुमेली हिसार में ही था। उसे शहंशाह कुस्तुनतुनिया के इक़दामात की खबर मिली तो उसने मुस्लिहुद्दीन आगा से इजाज़त ली और कुस्तुनतुनिया जाना चाहा, लेकिन उसके दिल में रोज़ी के साथ होने वाली ज़्यादती का दुख था। उसने दिल में फैसला किया कि वो कुस्तुनतुनिया रवाना होने से पहले एक मर्तबा रोज़ी की बाबत मालूमात ज़रूर हासिल करेगा, ताकि उस मासूम लड़की को मुसीबत से छुटकारा दिलाए। यही सोचकर वो सबसे पहले मच्छेरों की बस्ती की तरफ रवाना हुआ। अब उसके जिस्म पर आम शहरियों जैसा लिबास था और उसने सर पर कुस्तुनतुनिया की मखसूस टोपी पहन रखी थी। वो रुमेली हिसार से एक सेहतमंद घोड़े से रवाना हुआ और मच्छेरों की बस्ती के करीब पहुंचकर रुक गया। उसे किसी ऐसी शख्स की तलाश थी जो उसे रोज़ी के बारे में बता सकता। इसी असना में उसकी नज़र एक 9-10 साला लड़के पर पड़ी और उसने अपने चेहरे को अपने मफलर से छुपाते हुए उस लड़के को आवाज़ दी। लड़का कासिम के पास दौड़ा चला आया। कासिम ने उसे पहचान लिया। वो बस्ती का ही एक बच्चा था जो कासिम से अच्छी तरह मानूस था। यही वजह थी कि कासिम ने अपना चेहरा छुपाए रखा और उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे सरदार की बेटी को यूनानी सिपाही ले गए थे, उसका क्या हुआ? बच्चे ने इंतहाई तज्जुब से कासिम की आंखों में देखा और उसे पहचानने की कोशिश की। कासिम ने अपना सवाल फिर दोहराया तो बच्चा बोला, हमारे सरदार की बेटी ठीक ठाक है और वापस आ चुकी है, लेकिन वो बेहद गमजदा रहती है। कासिम के दिल को धचका लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया और बच्चे को शाबाश देकर रुखसत कर दिया। अब कासिम की मंजिल कुस्तुनतुनिया थी, लेकिन वो सोच रहा था कि वो कुस्तुनतुनिया में दाखिल किस तरह होगा, क्योंकि शहर के सारे दरवाजे तो बंद थे और दरवाजों की खिड़कियां बेशक खुली थीं, लेकिन शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स की अच्छी तरह छानबीन की जाती थी। और दूसरी अहम बात यह थी कि कासिम शहर की जुनूबी सिमत में आबनाए बासफोरस के किनारे पर मौजूद होने की वजह से शहर के असल दरवाजे से बहुत दूर था। कासिम के लिए जरूरी था कि वो या तो शहर के बड़े दरवाजे सेंट रोमांस तक तवील फासला तय करे, या आबनाए बासफोरस की शाख गोल्डन हॉर्न को कश्ती के जरिए अबूर करके पड़ली तरफ शहर की बंदरगाह पर जा उतरे। कुस्तुनतुनिया का नक्शा बड़ा अजीब था। ये बर्र-ए-आज़म यूरोप के किनारे पर एशिया के बिल्कुल सामने वाक़ था। बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म एशिया के दरमियान आबनाए बासफोरस का नीला पानी हद फासिल था। आज से 6 लाख साल पहले जब खुश्की के ये दोनों बड़े टुकड़े यानी बर्र-ए-आज़म एशिया
और बरआज़म यूरोप जब समंदर में तैरते हुए एक दूसरे के करीब आए तो दोनों अपने दरमियान 1 से 3 मील का फासला रखकर अपनी अपनी जगह रुक गए। यही दरमियानी फासला आबनाए बास्फोरस है और कुस्तुनतुनिया ही वो मकाम है जहां खड़े होकर एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया को साफ देखा जा सकता है। और फिर कुस्तुनतुनिया का महल्ले वकू आबनाए बास्फोरस के परले साहिल यानी यूरोपी साहिल पर भी निहायत अजीब है। फजा से देखा जाए तो दोनों बरआज़मों के दरमियान लेटी ये आबनाए एक बैल की गर्दन और सर से मुशाबे है, जिसका सिर्फ एक सींग है जो बाएं तरफ जमीन में दरार डालता हुआ एक छोटी सी खलीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी को सुनहरी सींग कहते हैं। सुनहरी सींग यानी गोल्डन हॉर्न। अगर बॉस्फोरस के देवता को पर्वत के रुख पर तस्वुर किया जाए तो गोल्डन हॉर्न ऐसे है जैसे बॉस्फोरस के देवता ने अपना एक बाजू फजा में फैला रखा हो। बॉस्फोरस की इसी शाख को शाखे ज़री कहते हैं। अब कुस्तुनतुनिया का महल्ले वकू ऐसे है कि बॉस्फोरस से एक तरफ निकलती हुई खलीज की वजह से उस मकाम पर वाक़े खुश्की के टुकड़े ने एक नोकदार और मुसल्लस नुमा शक्ल इख्तियार कर ली है। इसी मुसल्लस पर कुस्तुनतुनिया का शहर आबाद था और उस वक्त शहर की फसील भी साहिल के साथ साथ घूमती चली गई थी। शहर के एक पहलू पर वसी आबनाए और दूसरे पर गोल्डन हॉर्न का पानी था। इसी गोल्डन हॉर्न के दहाने पर एक आहनी जंजीर बांधी गई थी जो बवक्त ज़रूरत खींचकर गोल्डन हॉर्न में जहाज़ों और कश्तियों का दाखला रोक दिया जाता। उस मुसल्लत शहर की ये दोनों अतराफ समंदर की वजह से महफूज थीं। यही वजह थी कि इन अतराफ की फसीलें बहुत ज़्यादा मजबूत और बुलंद न बनाई गई थीं। शहर की इकलौती सिमत जो खुश्की की जानिब थी एक मजबूत और बुलंद फसील के ज़रिए महफूज कर दी गई थी। बुर्ज गलाता गोल्डन हॉर्न के किनारे शहर की फसील के नज़दीक वाक़ था। कासम गे बंदरगाह की जानिब से शहर में दाखिल होने का फैसला किया। फिल हकीकत वो गोल्डन हॉर्न में लटकी उस आहनी जंजीर का जायजा लेने के साथ साथ बुर्ज गलाता को भी अच्छी तरह देखना चाहता था। उस तरफ आते हुए कासिम को पहचान लिए जाने का डर भी था क्योंकि बुर्ज गलाता यूनानी सिपाहियों के कब्जे में था और उन सिपाहियों में से चंद एक ने कासिम को देख रखा था। लेकिन कासिम ने इसी जानिब से शहर में दाखिल होना जरूरी समझा। गोल्डन हॉर्न के इस किनारे पर जहां इस वक्त कासिम पहुंचने वाला था यूनानी सिपाहियों का एक मुस्तकिल कैंप भी लगा रहता था। यही वो जगह थी जहां से मकरून ने 400 सवारों का लश्कर लिया था। लेकिन कासिम तो उस रास्ते पर जा रहा था जो आम लोगों के इस्तेमाल का रास्ता था। इसी रास्ते से बाज मुमालिक का सामान और बहुत से काफिले कुस्तुनतुनिया की तरफ जाया करते थे। शहर के दरवाजे बंद होने की वजह से अगरचे इस शाहरा पर आम मुसाफिरों की आमद रफ्त तो कम थी, लेकिन बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों पर बहुत ज्यादा सामान रसद लाया जा रहा था। ये वो सामान था जो आबनाए बॉस्फोरस की मुख्तलिफ गोदियों पर उतारा और साहिल के रास्ते शहर में जमा किया जा रहा था। कासिम ने सामान से लदी बैलगाड़ियों को देखा तो सोचा कैसर कुस्तुनतुनिया के मुहासरे की बेपनाह तैयारियां कर रहा है। वो शहर में इतना सामान रसद इकट्ठा कर रहा है कि शायद कई माह तक बेफिक्री के साथ महसूर रह सके। गोल्डन हॉर्न में दर हकीकत इस अजीम शहर की बंदरगाह थी। यहाँ बहरे अस्वद और बहरे मारमोरा से आने वाला तमाम साजो सामान और मुसाफिर उतरते थे। आबनाए बोस्फोरस के साहिल पर और भी बहुत सी गोदियां थीं जिन्हें छोटी छोटी बंदरगाहें कहा जा सकता है। अगर सुल्तान मोहम्मद खान का रुमाली हसार कामयाबी के साथ तामीर कर लिया जाता तो आबनाए बोस्फोरस की पूरी एक सिम्मत यानी बहरे अस्वद से आबनाए में दाखिल होने वाला पूरा रास्ता ईसाई जहाज़ों के लिए बंद हो सकता था। अगरचे कैसर के पास आबनाए में दाखिल होने के लिए मंदिर की तरफ से अभी बहरे मारमरा का रास्ता खुला था, दर दानियाल भी उसी जानिब था। चुनाचे अब भी मगरबी यूरोप के जहाज इसी रास्ते से आबनाए में दाखिल होकर गोल्डन हॉर्न में दाखिल हो सकते थे। रुमाली हसार तो गोल्डन हॉर्न से 5 मील बहरे अस्वद की जानिब दूर था, लिहाजा गोल्डन हॉर्न को सुल्तानी कश्तियों के गश्त फौरी तौर पर बंद न कर सकते थे। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात थी कि आबनाए में दाखिल होने के लिए बहरे अस्वद का रास्ता बंद कर दिया जाए।